کو ہم نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. میں آج کی رات میں بہت کچھ عبادات ریاضات مجاہدات وظائف کرنے ہیں اور میں یہاں پر مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا, کچھ میسیجز جو ہیں. اس کے بعد پھر ہم جیسے کہ معمول کے مطابق ذکر کی محفل سجائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی کریں گے کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے. سب سے پہلے میں شعبان المعظم کے اس نصف کے متعلق عرض کر دوں. بہت لوگ دو طرح کے لوگ آج میسیجز میں مصروف تھے, ایک معافی نامہ بھیجنے والے اور دوسرے والے. یہی دو لوگ آج کنٹینیو بزی تھے. معافی مانگنے والا طبقہ تو اچھا طبقہ تھا کہ کم از کم انہیں احساس تو ہے کہ ہمیں کسی سے معافی طلب کرنی چاہیے, اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کام چور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں. آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں, رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں منگنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ. ڈھول بازے کرتے ہو اس کا ثبوت تو لے آؤ. تمہارے برتھ ڈے پارٹیاں تو 12 کے بعد شروع ہوتی ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ. تمہارے پاس دنیاوی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں, اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے تو یہ دلیل کس طرح سے آ رہی ہے, کس طرح کا مطالبہ ہے؟ یہ شیطان مطالبہ کرتا ہے. حقیقت تو یہ ہے, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہوں گاتے ہوں آج کی رات, ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں, لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی, پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا. دوسرا جواب یہ ہے, آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان تجھے پتہ نہیں, میرے رسول تو 365 راتیں جاگتے تھے, وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے. آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں. جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے جس میں صحیح احادیث ہے, وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے. اس دن باری میرے ساتھ حضور کی گزارنی کی تھی, لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے. میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی, سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے, تو مسجد میں جا کر دیکھی, مسجد میں نظر نہیں آیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے, میں چلتی ہوئی باہر نکلی. یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا, کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے نکلتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, دور پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے, مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے, وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں, تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی, حرکت تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے, پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے, تم گھبرائی ہوئی ہو, بے چین ہو, کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے, زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہرگز نہیں یا رسول اللہ, میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اتدرین هذه اللیلہ, عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے. اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے, اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے, کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں, یا کس کی شادی ہونے والی ہے, یا کس کی موت ہونے والی ہے. یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے, تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے, ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ, کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے. اور پھر ارشاد فرماتے اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے عزیزو، آج جو دن گزر گیا، مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی، 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے۔ آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت، کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، یہ سنت ہے۔ اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ، تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی۔ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات اور دونوں عید، بقرعید اور رمضان کی عید کی رات، یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو۔ جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ان سے پوچھے، سنن ابن ماجہ کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شهر شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو۔ اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی، پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ، 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں، آپ خاص مت کرو، پورا مہینہ رکھ لو، آپ پورا مہینہ رکھ لو، حضور کی سنت ہے۔ ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے، یہ شیطان مردود کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور تفسیر صابی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے، اس میں جو روایت ہے تفسیر صابی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الصابی میں ہے، 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ، آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے۔ 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔ حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی تو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات بھر عرض کرنے لگے مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہے، 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے، بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی، یہ رات، یہ تیسری رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے۔ آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں، اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خدا لے گا۔ آج کی رات میرے عزیزوں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، پوری امت کی شفاعت، پوری امت کی شفاعت۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش کریں گے۔ بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے، مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں، اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہے، میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے، ہمارا تو معمول یہی ہے، بہت سارے لوگ، ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے،
शब बारात कहां से साबित है, शब कदर कहां से साबित है? तो हम तो सिर्फ पहले लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहते हैं, ये तो सिर्फ सुन्नियों की किस्मत से साबित है। ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौके अता फरमाता है गाहे बगाहे, और बंदे उसको याद कर लेते हैं। अजीजा ने गिरामी औकात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराज़ात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हज़रत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं। कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अज़कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है, वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती हैं और अपने पड़ोस में फख्र करती हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है, जिनको बार बार दलीलों की जरूरत है, उनकी रूहें आकर कोस कर जाती होंगी। बहरहाल ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, जिसके मुतालिक तारीख ये है कि एक तारीख में आपको बताऊं, इस महीने की एक और तारीख है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबूवत इस महीने में मिली, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नूर मारिफत इस महीने में दिया। उससे बड़ी चीज ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी महीने में मक्का वालों के मुतालबे की वजह से अपना इशारा चांद की तरफ करके 2 टुकड़ों में तब्दील फरमाया था। तो शक्कुल कमर का जो मौजज़ा मेरे आका का है वो शाबानुल मुअज़्ज़म में पेश आया, वो शाबानुल मुअज़्ज़म में आया है। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोगों को इंडिपेंडेंस डे याद तो है, रिपब्लिक डे तो याद है। आज पूछता हूं मैं कि 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, हर साल मनाते हैं। अरे मियाँ 1947 में आजाद हुआ था ना, तो अभी तक क्या है, या हर साल आजाद हो रहा है? हर साल आजाद हो रहा है? नहीं, एक बार हुआ था लेकिन उसकी खुशी अब तक मनाई जा रही है। इस पर किसी को एतराज नहीं, मियाँ हम भी मनाते हैं, हमें भी खुशी, हम इसी मुल्क में रहते हैं। लेकिन जिनको शब बारात नहीं मनाना, शब मेराज नहीं मनाना, शब ईद मिलाद नहीं मनाना, उनके मदरसों पर तो झंडे 15 अगस्त को पूरे दिन भर लहराते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि डर है हुकूमत पर जो बैठे हुए हैं। बस फर्क इतना है, दलील पूछने वाले अपने आकाओं से डरते हैं और सुन्नी अपने आका से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा आका तुम्हें मुबारक, हमारा आका हमें मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जी रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जी रहे हैं। इकबाल ने सच कहा था, डॉक्टर इकबाल ने, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आज मुझे पता है मेरे अजीजों, कुछ बातें और मैं वक्त के तकाजे के ऐन मुताबिक है आपको अर्ज जरूर करूंगा। आप कभी ये मत समझना कि मुझे बड़ा मजमा मिल जाए तो मैं कुछ भी बोल लेता हूं। मेरे पास 4 लोग बैठे हो तब भी मैं वही बात करूंगा, और 4 लाख लोग बैठे हो तब भी मैं वही बात करूंगा। इसलिए कि मैं सामने मजमे को देखकर नहीं बोलता, मैं मकीने गुंबद खजरा को देखकर बोलता, उनकी रजा को मद्देनजर रख करके कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी शरीयत पर कोई आंच ना आने पाए, हम उस पर बोलते रहेंगे। अब इस सिलसिले में कोई भी चेहरा आ जाए, हमें उससे गरज नहीं है, हमें उससे गरज नहीं। सुन्नियों, अपना अकीदा इतना मजबूत रखो, इतना मजबूत रखो। आला हजरत ने कितना प्यारा पैगाम दिया। तुम कब तक इनकी उनकी उठाते घूमते रहोगे जूतियां, कब तक उनकी इनकी धोतियों में घुस करके पनाह लेते रहोगे? इनके हालात ऐसे हैं कि आज है कल नहीं है, और उसके बाद ये बदलते तख्त तुम्हें मजबूर कर डालेंगे, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। इसीलिए जीना हो इस सरजमीन पर तो यूं जियो जैसे आशिकाने मुस्तफा जिया करते थे। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तवज्जो, मैं आज आपके सामने तवज्जो, आज अकीदे की मजबूती इसी बात पर है, इसी बात पर है कि मुसलमान अगर डरे सहमे हुए हैं तो मैं ये निकालना चाहता हूं। और मैंने ये बचपन से सुना है कि हैदराबादी लोग डरते नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह डरते नहीं है। अल्लाह करे कि ऐसे ही आपके दिल मजबूत रहे। और हिंदुस्तान में भी हमारे नेताओं में जो सर चढ़ करके बोलते हैं वो भी हैदराबादी से है। लोगों को शेरवानी से परेशानी भी है। आपको मैं यही कहना चाहता हूं, ये जो तुम्हारा वस्फ है इसी को जिंदा रखो। बरेली के इमाम ने कहा, खौफ ना रख रजा जरा,
तू तो है अब्दे मुस्तफा। अब्दे मुस्तफा का मतलब क्या है? मुस्तफा का गुलाम। जब तुम ये कहते हो कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हो, तो डर कर क्यों जीते हो? खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अगर तुम्हारे सामने कोई मॉब लिंचिंग का वाकया लाकर दहशत पैदा की जाए और डराया जाए, अगर तू भी अल्लाह अल्लाह करेगा तो देख जिस तरह इसको रस्सी से बांध करके मार दिया गया, तेरा भी हशर ऐसा ही होगा। इन कुत्तों को सिर्फ इतना कह दो, अगर तुम मारते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मेरी तारीख में बिलाल हबशी भी मौजूद है, खुबैब इब्न अदी भी मौजूद है। हमें बचपन से सिखाया गया है, हुसैन इब्न अली ने अपने शहजादों को करबला में उतार करके पूरी उम्मत को यह दर्स दिया है, टुकड़े हो जाए तो बर्दाश्त कर लो, मेरे मुस्तफा की शरीयत पर आंच आने ना देना। ये हौसला, ये इस्तिकामत रहे। आज जो मैं बात अर्ज कर रहा था, हो ये गया है कुछ लोगों को चापलूसी की पॉलिसी कि किसी को राजी करने के लिए लोग इस कदर गिर जाते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता वो खुद थे क्या। एक बात याद रखें, इंसान सबसे ज्यादा गिर जाता है उस वक्त जब इंसानों को राजी करने की कोशिश करता है। सूफिया इकराम फरमाते हैं, जब तक उसके अंदर से यह हवस नहीं जाएगी, वो अल्लाह की बारगाह में मकामात नहीं हासिल कर सकता। इंसानों को राजी करने के लिए जो जी रहा है, फला राजी हो जाए, फला राजी हो जाए, कभी सेठों को राजी करो, कभी नेताओं को राजी करो, कभी पुलिस को राजी करो। दुनिया में कितने हैं जिसको तुम राजी करते रह जाओगे। इसीलिए रब ने फरमाया, फला तख्शौहुम वख्शौनी, इन सब से मत डरो, मुझसे डरो। अल्लाह का हुक्म है, एक जात से तुम खौफ रखोगे, अल्लाह सारे खौफ तुम्हारे दिल से निकाल देगा। दुनिया का डर तुम्हारे सीने से अल्लाह निकाल देगा। जीना है इसलिए कि मुझे पैदा किया मेरा मौला, मुझे मौत देगा मेरा मौला, मुझे रिस्क दे रहा है मेरा मौला, मुझे खिलाता पिलाता है मेरा मौला, मुझे सांसें देता है मेरा मौला। जब सब कुछ वही देता है, मौत भी वही, हयात भी वही, तो डरना बंदों से क्यों है? और मुझे ये बताओ, तुम्हारे हर अमल की सजा और जजा देने वाला कौन है? अब मैं चंद सवालात करता हूं, तुम्हारी जुबान से एक ही लफ्ज आएगा, आज की रात है। क्योंकि मैं इब्ने माजा शरीफ की हदीस पूरी आपके सामने नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान अव्वल पर इजलाल फरमाता है और बंदों को पुकार कर ये कहता है, अल्लाह मुस्तगफिरिन फाग़फिर लहू, कोई है जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूं, कोई है जो बीमार मुझसे शिफा मांगे मैं उसे शिफा दे दूं। आज की रात रब तआला खुद बंदों से फरमा रहा, तुम्हारा ताल्लुक आज अल्लाह से इतना जुड़ जाए। इसीलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, तुम्हें तुम्हारी मां के पेट में रिज़्क कौन देता था? तुम्हें तुम्हारी मां के पेट से बाहर आने के बाद मां के सीने में खून को बदलकर दूध बनाकर रिज़्क किसने बनाया? तुम्हारे बचपन से लेकर जवानी आ गई या बुढ़ापे तक तुम्हें मुफ्त बगैर किसी मुआवजे के सांसें कौन देता है? ये पूरी जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? ये कायनात के सारे अशिया किसकी है? जब तुम्हारी जुबान पर अल्लाह अल्लाह है, फिर मैं आपसे पूछता हूं, हमारी जिंदगी का तरीका भी यही है। जब तुम पैदा हुए थे मां की गोद से, तो सबसे पहले तुम्हें नहला धुला करके लाया गया था मौलवी साहब के पास या किसी साले बंदे के पास, और क्या कहा गया था कि इसके कान में क्या पढ़ो? सबको पता है, सबसे पहले तुम्हारे कान में जो जुमला आया वो क्या था? अल्लाहु अकबर। कौन सा जुमला तुम्हारे कान में आया? जोर से, पीछे वालों के। मैं क्यों कह रहा हूं आपको तवज्जो, मैं इस तरह बुलवाने का आदी नहीं। आप जिंदगी में शुरुआत कर रहे हैं जिस जुमले से, अल्लाहु अकबर, जिसका मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सबसे पहला जुमला मेरे कान में आया, तुम्हारे कान में आया। अब फिर जब होश आया था तो जिस मोहल्ले से गुजरो मस्जिदों की आवाजें यही पुकारती थी, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं ये आवाज सुन करके मस्जिद में अंदर गया, इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े थे, तकबीर बांधा तो क्या कहकर? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं तो हाथ बांध कर खड़ा हुआ, किसी के सामने झुकता नहीं था। इमाम ने यह कह करके झुकाया, अल्लाह। इमाम ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर कहा, मैं झुक गया, उठा। फिर उसके बाद हम तो पेशानी किसके लिए रगड़ते थे? नहीं रगड़ते, लेकिन इमाम ने जब ये कहा अल्लाहु अकबर, मैंने पेशानी भी रख दिया। अजीजा ने गिरामी, क्या तुम्हें एहसास है? मैं हाथ बांध लिया अल्लाहु अकबर पर, सर झुका लिया अल्लाहु अकबर पर, पेशानी टेक दिया अल्लाहु अकबर पर, मेरे सारे अमाल अल्लाहु अकबर पर। हत्ता के वक्त आया मेरी मौत का, जब सांसें रुक गई, कफन पहना दिया गया, जनाजे में लाकर रख दिया गया, इमाम जनाजे पर आकर खड़ा हुआ, सफे लग गई, इमाम ने रकात बांधी, क्या कहकर? मैं दुनिया में आया था अल्लाहु अकबर कह करके, दुनिया से जा रहा हूं तो मेरी पूरी जिंदगी यही है मेरे अजीजों, आपकी मैं कह रहा हूं, हर मुसलमान की जिंदगी वो शुरू करता है इस बात से कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और दुनिया से जाता भी है तो ये ऐलान करते हुए कि अल्लाह सबसे। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई कुछ भी हो, कोई बादशाह होगा 4 साल का, होगा 5 साल का, लेकिन हर जमाने में हर वक्त अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह। ये बातें मैं इसलिए आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए कहा। अब पहचानो उन लोगों को जो ये कहते हैं अल्लाह भी एक है, ओम भी एक है। ये हालात आ गए आज मेरे अजीजों। बाज लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों का सख्ती से रद्द कर रहा हूं। मियां जरा अकल से काम लो। तुम्हारे सामने जब कोई भी मौलवी का चेहरा है, कोई भी मौलवी का चेहरा, चाहे मैं भी हो,
जब तक अल्लाह और उसके रसूल की बात हो तुम सर झुका दो। या ये मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि कोई मौलवी साहब अभी पूरे हिंदुस्तान भर का माहौल खराब किए हुए, उन्होंने पता नहीं कहां से कौन से ख्वाब में उनको नजर आया कि ओम भी वही है अल्लाह भी वही है, मिला करके और साबित करो कहां से है। तो कहा हिंदुओं की किताब में ओम के जो माने लिखे हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि अल्लाह के भी वही माने हैं, ओम के भी वही माने हैं। तुम अपनी शरीयत उनकी किताबों से साबित करोगे, हमारी शरीयत मेरे मुस्तफा की हदीसों से साबित होगी। किसी और दीन की किताबों का मेरा दीन मोहताज नहीं है। इस्लाम साबित करने के लिए किसी भी दूसरे मजहब की किताब की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस्लाम के पास क्या कमी है, कौन सी दलील नहीं है? पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक का हर मसला अगर किसी दीन में मौजूद है तो वो मेरे मुस्तफा की शरीयत में। हम दूसरों की किताबों से ये साबित करेंगे इसका माना भी वही उसका माना भी वही है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करके फिर आगे बढ़ता हूं। हजरत उमर का जमाना, कौन उमर, जिनके जलाल जिनके रौब दबदबे से कैसर और किसरा कांपते थे, लाखों की फौजें थर्राती थी, मस्जिद में खड़े होकर खुतबा दे रहे और फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, उमर इब्न खत्ताब आज अपने कोड़े से सबको हाँकता है, कल को अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अलावा इनकी शरीयत के अलावा कोई नया मसला मेरी तरफ से आए तो तुम क्या करोगे? मेरे पीछे चलोगे? मेरी इताअत करना हर एक पर वाजिब है, खलीफतुल मुस्लिमीन हो। तो एक गरीब साहबी देहात के रहने वाले खड़े हो गए मजमे में, कहा है उमर इब्न खत्ताब जब तक आप रसूलुल्लाह की शरीयत बोल रहे हैं हमारा हर अज़्व तुम्हारे लिए कुर्बान है, और जहां मेरे मुस्तफा की शरीयत से हटकर बात करोगे तो तलवार निकाल कर बताते ये तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन होगी। वो गरीब सहाबी किसको कह रहे हैं? उमर इब्न खत्ताब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं उस वक्त मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने चेहरा किसका है, मैं तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा मेरे मुस्तफा की शरीयत की हक़ानियत बचाने के लिए। शख्सियतें नहीं देखी जाती हमारे दीन में। बड़े मौलवी साहब बोले हैं तो इसका मतलब सही होगा नहीं, वो कुछ भी बक कर जाए तो सब सही नहीं होता। पहले ये देखें, आप कोई बड़े ओहदे वाला बोल रहा है, ऊंची टोपी वाला बोल रहा है, सफेद दाढ़ी वाला बोल रहा है, हमें इससे गरज नहीं। मैं कहता हूं अगर फटे जुब्बे वाला भी बोल रहा हो लेकिन दिल इश्क मुस्तफा से चमक रहा हो, वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे आंखों का नूर है। लेकिन दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं और किसी हुकूमत को राजी करने के लिए ओल फोल बक रहा है तो फिर उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं और ना ही हमारी कायद है। अब अल्लाह अकबर मैंने आपके सामने इतनी बार कहलवाया सिर्फ इसीलिए कि अगर ये फितना कल को तुम्हारे यहां आ जाए कि तुम्हें यह कह दिया जाए कि मौलवी साहब भी ये कहते हैं ओम भी एक ही अल्लाह भी एक ही है, तो कभी इसका भी जाप कर लो कभी इसका भी जाप कर लो, कहीं हमारा नौजवान बहक ना जाए, गुमराह ना हो जाए कि हमारे उलमा ने जब ये कह दिया है तो शायद इसकी तारीख ऐसी होगी। एक बात याद रखें, मौलवी साहब ये कहते हुए ये भी बहक गए कि उन्होंने दूसरे मजहब वालों से पूछा ओम क्या है, तो उनको लोगों ने बताया कि वो एक हवा है, वो एक ताकत है। मौलवी साहब कह रहे हैं कि उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। अरे पागलो, हम हवा को अल्लाह कहते हैं? हवा अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अगर हवा को ही तुम अल्लाह मानते हो तो इसीलिए हवाओं में जुड़ रहे हो। शायद तुम्हारा अकीदा अभी उस अल्लाह की तक नहीं आया। वो कादिर है, मतलब जिस पर हम ईमान रखते हैं वो अल्लाह कैसा है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मकान मकानियत से पाक है, इंसानों के बस में आने से पाक है, हर ऐब से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं। हमारे यहाँ जो तस्वुर है अल्लाह का वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। मुझे बताओ मुसलमानों, हैदराबाद में हजारों मस्जिदें होंगी, आप नमाज के लिए जब जाते हैं तो क्या मेहराब में या सामने की दीवार पर अल्लाह की तस्वीर बनी है? चलो हैदराबाद में नहीं, किसी दूसरे शहर में है, दूसरे मुल्क में है, कहीं सुना आपने? पूरी दुनिया भर की मस्जिदों में जाकर देख लेना, अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं बनाई गई। यही तो तुम्हारी खुसूसियत है मुसलमानों की, जो बगैर अपने खुदा को देखे सजदे में गिर जाती, बगैर देखे सजदे में गिरती है और इसका यकीन है कि अल्लाह है। हाँ, ये वो दूसरा तस्वुर तुम कहां लाकर फिट कर रहे हो, जिनको सामने रखना पड़ता है फिर झुकना पड़ता है, सामने रखना पड़ता है फिर झुकना पड़ता है। और मजाक तो मजाक, एक सहाबी हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत की अपनी बात बताकर कहते हैं आका मेरी जिंदगी के इस्लाम लाने से पहले के दो वाकयात ऐसे हैं, एक वाक़े को याद करता हूं तो हंसी आती है और दूसरे वाक़े को याद करता हूं तो रोना आता है। हुजूर ने पूछा वो क्या है? फरमाते रोना इस बात पर आता है कि हम जहालत के जमाने में बेटियां पैदा होती तो गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे। कहते मैंने खुद भी दफन कर दिया। आज जब ये बात एहसास होती है, याद आती है इस्लाम में आने के बाद, तो रोना आता है कि हमने कितना जुल्म किया अपनी बच्चियों पर। इस्लाम लाने के बाद एहसास हुआ। हुजूर ने पूछा फिर हंसी किस बात पे आती है? वो कहते या रसूल अल्लाह, वो जमाने जहालत में जब हम सफर पे जाते थे तो आटे के खुदा बना लेते थे, आटा गूंद करके, क्योंकि सफर में भी हमको खुदा चाहिए।
कहीं जाएंगे हवा का अलग है, पानी का अलग है, खाने का अलग है, सब अलग है, सब अलग अलग हम बना करके लेके चलते थे, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर को उठाकर ले जाना मुश्किल था। वो सहाबी कहते हैं किसी को हिम्मत लगे, मैं 1400 साल पहले की बात बता रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि आका हम वो आटे के बनाकर ले जाते थे। हुजूर ने पूछा फिर क्या हुआ? कहा रास्ते में चलते थे, फिर कभी ऐसा होता गल्ला अनाज हमारा खत्म होता तो कभी उसका हाथ तोड़ के खाते थे, कभी पैर तोड़ के खाते थे, कभी उसकी पूरे सर को ही पका के खा लेते थे। उनको इस्लाम लाने के बाद एहसास हुआ, फरमाते हैं कि किस तरह की जहालत में था कि मैं खुद हाथों से खुदा को बनाता और खुद ही तोड़ता भी था, खुद ही खाता भी था। अजीजा ने गिरा खुदा का ये तस्वुर हमारे यहाँ नहीं है। अल्लाह का जो तस्वुर है वो क्या है? हमारे यहां तस्वुर यह है कि मैं मोहताज हूं और वो बेनियाज है। मैं भूखा होता हूं, खिलाता वो है, मैं उसको खिलाता नहीं, मैं उसको उठा के बिठाता नहीं, मैं उसको सुलाता नहीं, मैं उसको पेंट करके अच्छा करता नहीं। मैं ही अगर सब करके खुदा को बनाओ तो फिर खुदा की क्या अहमियत रह गई? अपने हाथ से जिसको मैं बनाया फिर उस खुदा की क्या अहमियत रह गई? बल्कि हमारा अकीदा यह है, मेरे बाल नहीं थे, बाल भी मेरे मौला ने बनाए, मेरी आंख नहीं थी, आंख भी मौला ने दिया है, मेरे हाथ नहीं थे, हाथ भी रब ने दिया है, मैं तो नुतफे का एक बूंद था, मेरे जिस्म में हड्डियां उसने दी हैं, गोश्त उसने दिए हैं, चमड़ियां उसने दी है। और जिंदगी गुजारने का भी हमारा सलीका यही है। हम यही अर्ज करते हैं कि हम सोते तो है, उठाता वही है, वरना हमारी किसी की ताकत नहीं। पानी पी तो लेते हैं, निकालने की ताकत हमारे अंदर नहीं जब तक मौला ना चाहे। अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुतालिक जो हमारा तस्वुर है वो उसको बेनियाज मानना। और कुरान की आयत है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। महबूब आप फरमाते हो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। अब मैं आपसे आपका अकीदा पूछ रहा हूं, आज बहुत जरूरी है ये, क्या आप बताओ हवाओं को खुदा कहते हैं? हवा खुदा है? बारिश खुदा है? ताकत खुदा है? यानी कोई भी ताकत दुनियावी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चीजों का नाम नहीं है, ये सब चीजें तो उस अल्लाह ने पैदा किया, उस अल्लाह ने पैदा किया। एक साहब आए, सवाल तो देखिए, एथिस्ट जो आज नास्तिक जो है, जिनको कोई खुदा को मानना ही नहीं है, वो गुमराह कर रहे हैं। अब कुछ एक्स मुस्लिम नाम से हमारे दज्जाली टीवी वाले बहुत उनका आओ भाव करके बुलाते हैं, दावत देते हैं, उनको बिठाते हैं, डिबेट करवाते हैं। मैं तो अक्सर यही कहता हूं, ये बेचारे चैनल वाले ऐसे हैं जिनका काम तो आप देखते हैं रोजाना हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान भी नहीं चलती, हाँ रोजी नहीं चलती। उनको हमारे ऊपर कुछ ना कुछ डिबेट करना है, इस्लाम पर, मुसलमानों पर, दाढ़ी पर, टोपी पर, बुर्के पर, मस्जिद पर, कहीं ना कहीं तो कुछ करना ही है, वरना तो चैनल नहीं चलेगा, मसाला कहां मिलेगा। एक्स मुस्लिम भी ऐसे लाए जा रहे हैं जो सिर्फ सिवा खुदा के इनकार पर बैठे रहते हैं। दलील दो, कहां है खुदा, कहां है खुदा? अजीजा ने गिरामी वो कहा आपके ऊपर जब ऐसे सवाल आते हैं, कॉलेजेस में अभी ये बला फैली हुई, यूनिवर्सिटीज में फैली हुई है, एथिस्ट बहुत तेजी से लोगों के दिमागों को फेर रहे हैं कि खुदा है ही नहीं। और फिर जब आप कहते हैं अल्लाह है तो आपसे कहते हैं कि दलील दो, कहां है अल्लाह? हजारों दलीलें हैं मेरे अल्लाह के होने पर, खुदा के होने पर। लेकिन आप सबसे पहले उस एथिस्ट से, उस गुमराह मुल्हिद से ये पूछो तो इनकार जो कर रहा है, पहले इसकी दलील दे कि खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, इसकी दलील चाहिए। आप उसके बाद शर्म से पानी पानी ना हो जाए तो फिर मुझे बता, फिर पूछो आप खुदा नहीं है तो दलील दे। मैं पूछता हूं ये जमीन से ये सब्जा कौन उगाता? ये जब कौपलें निकल करके आती हैं तो इसमें फूल निकल आते हैं, इसमें रंग कौन डालकर जाता है? कौन है? कोई जिन्नात आते हैं, कोई और होता है? कुछ है तो बता, कोई तो है जो इस पूरे कायनात के निजाम को संभाला हुआ। जो इनकार करते हैं उनके लिए आप पहले पूछे कि दलील क्या है तुम्हारे पास। और फिर आपको मैं एक बात बताता हूं, पूरी दुनिया के कवानीन में, फिलॉसफी में एक चीज मुहाल है, नामुमकिन है। क्या चीज? यानी यानी कोई नॉन एंडिंग चीज ऐसी दुनिया में है ही नहीं, ऐसी है ही नहीं। मैं हूं, मेरे से पहले मेरे बाप, मेरे बाप से पहले मेरे दादा, दादा से पहले परदादा। आप कोई भी चीज दुनिया की ले लें, उससे पहले उससे पहले उससे पहले कुछ ना कुछ है। लेकिन कहीं तो जाकर आपको रुकना पड़ेगा, इससे पहले कुछ नहीं था। जब तक ये तुम्हारा तस्वुर ना आए उस वक्त तक साइंस भी इसको बातिल कहती है। कोई एक लास्ट एंड वाली चीज होना ही चाहिए, वरना तो सोच इतनी है कि कहीं रुकेगी ही नहीं। अब जैसे वो लोग कहते हैं अल्लाह से पहले क्या था, हम कहते हैं तुम ही बताओ क्या था, तुम ही बताओ। कहा दूसरा अल्लाह था, मैं पूछता हूं उससे पहले कौन था? फिर तुम तीसरा अल्लाह, हम कहते हैं उससे पहले कौन था? फिर तुम तो लाखों तो गिनते जाओ, मैं तो पूछता ही रहूंगा उससे पहले क्या, उससे पहले क्या। तुम्हें कहीं तो जाकर एंड करना होगा और बोलना होगा इससे पहले कोई नहीं था। ये मैं अपने इस्लामी बात ही नहीं कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया का फिलॉसफी कायदा यही है, कानून यही है, साइंस भी इस चीज को तस्लीम करती है। कोई एक नुक्ता ऐसा हो जिससे पहले कोई चीज नहीं, और हम कहते हैं जो जात ऐसी है जिससे पहले कोई नहीं, उसी को हम अल्लाह कहते हैं। एक मैं आपको मिसाल बता दूं, एक खलीफा के पास सवाल हुआ और कुछ मौलाना लोग थे बेचारे,
नए तलबा थे, उनके पास एक मुअत्तज़िली आया और उसने उनको गुमराह करने के लिए ऐसी बात किया। आप बताओ, मैं अभी आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है या नहीं? अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर मुमकिन शय पर हम कहते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उसने भी यही मौलाना लोगों से सवाल किया, हर चीज पर कुदरत रखता है, तुम्हारा यकीन है? सबों ने कहा यकीन है, अल्लाह कादिर है। उसने कहा तो फिर वो अल्लाह इस पर भी कादिर होगा कि अपनी तरह एक दूसरा अल्लाह पैदा करे? जाहिर सी बात है नहीं पैदा कर सकता। अगर आप कहोगे तो वो कहेंगे कि फिर तो तुम कादिर नहीं मानते अल्लाह को। अल्लाह कादिर है तो गोया कि दूसरा भी पैदा कर सकता है। फंसा दिया। कुछ लोग सोचने लगे कि क्या जवाब थे। वो आए, अपने वक्त के एक सूफी दुर्वेश बुजुर्ग थे, उनके पास कहने लगे, ऐसे वहां के मुअत्तज़िली गुमराही कहने लगे कि अल्लाह कादिर है तो अपनी तरह एक दूसरा भी बना सकता है, दूसरा भी बना सकता है। बहुत अहम नुक्ता मैं आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए। तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा सवाल है? कहा हम इसका जवाब नहीं दे सके। उन्होंने बहुत डांटा और कहा इसका जवाब मेरे घर में काम करने वाले लोग दे देंगे। कहा कि इतना इल्म रखते? कहा एक काम करने वाले को उन्होंने भेजा खलीफा के पास, बुलाओ उसको जो सवाल किया है मुअत्तज़िली गुमराह मुल्हिद। उसने कहा कि अल्लाह कादिर है तो अपनी तरह एक दूसरा भी पैदा कर सकता है, दूसरी तरह पैदा कर सकता है, कादिर है। तो इस गरीब मजदूर ने जो काम करने वाला था उसने पूछा कि हाँ अल्लाह कादिर है, और अगर वो दूसरा पैदा कर दिया अपनी तरह, तवज्जो, अल्लाह खालिक है, अल्लाह खालिक है, दूसरा जिसको पैदा करेगा वो मखलूक हो जाएगा। वो क्या होगा? वो क्या होगा? जिसको पैदा किया गया है। अब मुझे बताओ वो बराबर कैसे हो सकेगा? मखलूक होना एक ऐसा ऐब है जो खालिक में आ ही नहीं सकता। इसीलिए हमारा अकीदा है लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई। बात समझ करके चले। अल्लाह को अगर तुम ये कहते हो वो कादिर है, दूसरा अपनी तरह बना सकता है, चलो बना लिया, तो जिसको बनाया वो क्या, वो खालिक कैसे हो सकता है? वो तो मखलूक है ना, उसको तो खुद अल्लाह ने बनाया, तो वो कैसे खालिक होगा? नहीं हो सकता। मखलूक होना एक ऐब है खालिक के लिए, वो पैदा किसी से नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हें मानना पड़ेगा मेरा मौला वो है जो बेनियाज है, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ। ये अकीदे जरूरी थे, इसलिए मैं आपको अर्ज किया। इसलिए कि हमारा नौजवान आज डिबेट के चक्कर में टीवी देख देख करके कुछ लोगों को पढ़ करके गुमराह हो जाता है। बादों ने मुझसे कहा था कि मौलाना का अगर रद्द भी आपको करना था तो दलीलों से करना चाहिए था। अक्सर मेरा हाल ये है कि जब अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात सुनता हूं तो जज्बात में बेकाबू हो जाता हूं, और ये ईमानी गैरत का तकाजा है। हम अपनी माँ के खिलाफ सुनना नहीं पसंद करते तो रहमान के खिलाफ कैसे पसंद करेंगे जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। हम उस रसूल से जितनी मोहब्बत करते हैं अपने माँ बाप से भी नहीं करते, इसलिए कि हम अपनी जानों से ज्यादा मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जब कोई बात आती है हम बेकाबू हो जाते हैं। मैंने कहा सख्त जुमले में मानता हूं, मैंने पाखंडी भी कहा, दलाल भी कहा, मुनाफिक भी कहा, लेकिन किसको कहा? उसको कहा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को नहीं समझ सका या अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान को नहीं समझ सका। फिर अगर कोई मुझसे कहता है आपने ये सख्त जुमले कह दिए, पाखंडी कह दिया, मुनाफिक कह दिया, दलाल कह दिया, अल्लाह की शान को तू नहीं देखता, अरे नादान मैंने तो कम कहा, खिंजीर नहीं कहा। इसलिए कि रब्बुल जलाल की शान को अगर नहीं समझ सका तो फिर कौन से एजाज से हम बात करें। बहरहाल इस मसले को आप समझो और आओ हम अपने उन्वान पर आते हैं, हम जिसके लिए आज जमा हुए हैं। ये शाबान का महीना किसका महीना है? मेरे मुस्तफा का महीना है। आओ उनकी यादों में अब अपनी गुफ्तगू को मैं समेटता हूं, इसलिए कि हमारे दिलों का उजाला उसी जात से है, हमारी आंखों की रोशनी उसी गुंबद से है, हमारे कलेजे की ठंडक भी उसी नाम पाक से है। इसीलिए जब तक हमारे जल से उस पाक जिक्र से पर नहीं होते हमारी प्यास पूरी नहीं हो पाती, हम अपने रूह को मुकम्मल सैराब नहीं कर पाते। अजीज़ा निगरानी वक़ाफ़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है, कसरत से हमें याद करना है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है तुम इस महीने में कसरत से मेरे मुस्तफा को याद करो। आज हम ये नारा जरूर लगाएंगे, जिनको दर्द होता है बार बार मेरे मुस्तफा का जिक्र करने से, हम ये सर चढ़कर बोलेंगे रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा।